Welcome in this session. This presentation is about vaccine which falls under the Schedule F1 of Drug and Cosmetic Act. So in this presentation, I will discuss about labeling and packing of vaccine by using some examples like oral polio vaccine and MMR vaccine, anthrax spore vaccine and tetanus toxoid vaccine. Firstly, I will talk about Schedule F. As you know, there are 35 schedules framed under the Drug and Cosmetic Rules 1945 and Schedule F1 is one of them. So there are 4 parts of Schedule F1, in which one part is about provisions applicable to vaccine production, and part 2 and part 3 consist of provisions applicable to production of antisera and diagnostic agents. So what is antisera? Antisera are blood serum that contains antibodies against an infective agent and toxic substances like snake venom, and diagnostic agents are chemicals or substances used to detect abnormalities in tissues and organs. These compounds are helping aids for clinical pathology in general and other branches of medical sciences. And let's talk about vaccine in detail. So in simpler terms, if I say, then vaccine is simple and safe and effective way of protecting people against harmful diseases before they come into contact with them. For example, Bharat Biotech Pharmaceutical Company in India just developed the first indigenous vaccine of COVID-19 for emergency use. So in definitive term, if I say, then vaccines are antigenic materials consisting of the whole microorganism or one of its products. And vaccine impart active immunity. They act as antigens which induce production of specific antibodies or cell mediated immunity by the recipient himself. So what is the main difference between active and passive immunity? Active immunity means production of antibodies inside the body, and passive immunity means production of introduction of antibodies from outside of the body to inside. Okay, so there are 3 types of vaccine. First is killed vaccine or inactivated vaccine. They consist of microorganism killed by heat or chemicals. And second is live attenuated vaccines. They consist of live bacteria or viruses which have been rendered avirulent. And third is toxoids. These are modified bacterial endotoxins, exotoxins, so that toxicity is lost but antigenicity is remained. And there are some subtypes like bacterial vaccine, viral vaccine, combined vaccine. So what is bacterial vaccine? Bacterial vaccine consists of killed or attenuated bacteria that activate the immune system. For example, cholera vaccine, whooping cough vaccine. And viral vaccines contains viruses that has been weakened, so it does not cause the disease virus usually causes. For example, rabies vaccine. And combined vaccine, combined or polyvalent vaccine. Polyvalent means combination of 3 or more vaccine. So combined vaccine comprising several antigens in a single preparation protecting against more than one disease. For example, MMR vaccine which protects against mumps, measles and rubella, and DTP means which protects against the diphtheria, tetanus and pertussis. So as Nelson Mandela said, life or death for a young child too often depends on whether he or she is born in a country where vaccines are available or not. So we are lucky that we are living in a country where vaccines are available. And in 1995, following the global polio eradication initiative of WHO, India launched a pulse polio immunization program, and we celebrate it as National Immunization Day, which is conducted twice in early part of each year. So now my next topic will be bipolio B13 oral vaccine manufactured by Bharat Biotech Company. And before we move towards the next topic, let's talk about polio vaccine. Poliomyelitis, commonly shortened to polio, is an infectious disease caused by poliovirus, and there are 3 wild types of poliovirus: type 1, type 2 and type 3. People need to be protected against all these 3 types of poliovirus, and vaccination is important, and vaccination is the best protection for this डिजीज़. एंड दैट इज़ वाई जो वैक्सीनेशन है वो बचपन में ही हो जाता है, बिकॉज चिल्ड्रन यंगर देन 5 year old are more likely to be infected from virus than any other group. So 2 different kinds of vaccines are available: an inactivated polio vaccine and a live attenuated oral polio vaccine. तो जो IPV है वो इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है, एंड OPV इज़ गिवन बाय ओरल राउट. सो बाईपोलियो ओरल वैक्सीन बाईपोलियो B13 के बारे में बात करते हैं. इट कंटेन्स सस्पेंशन ऑफ लाइव एटीन्यूटेड पोलियोमाइलिटिस टाइप 1 एंड टाइप 3 वायरसेस एंड प्रिपेयर्ड इन प्राइमरी मंकी किडनी सेल्स. तो यहाँ पे टाइप 2 क्यों नहीं है, ये आपके दिमाग में आना चाहिए ये सवाल.
तो टाइप 2 इसलिए नहीं है क्योंकि WHO के द्वारा हटा दिया गया। पहले यूज़ होता था, तीनों टाइप यूज़ होता था, लेकिन बहुत सारी रिसर्च में ये पता चला कि वैक्सीनेशन के बाद अगर हम तीनों टाइप को कंबाइन करके वैक्सीन बना रहे हैं तो वैक्सीनेशन के बाद बच्चों में पैरालिसिस की समस्या देखी जा रही थी, बहुत ज़्यादा बच्चों में देखने को मिल रही थी। तो धीरे धीरे करके टाइप 2 को हटाया गया, फिर फाइनली हमें एक सेफ पोलियो वैक्सीन मिला। इट कंटेन्स मैग्नीशियम क्लोराइड 1 molar as a stabilizer, both kanamycin acid sulfate and neomycin sulfate as antibiotics. The vaccine fulfills WHO requirement for bivalent poliomyelitis vaccine type 1 and 3 live oral. So this product is manufactured and marketed by Bharat Biotech International Limited. Let's talk about administration. So bipolio B13 must be administered only orally, as its name suggests, oral vaccine. So 2 drops are delivered directly into the mouth of the vaccinee from the multi-dose vial by dropper or dispenser. बचपन में आप सबने पिया है पोलियो वैक्सीन, तो आपको पता है क्या should be taken not to contaminate the multi-dose vial dropper with saliva of the vaccinee. तो जो वायल है मल्टी-डोज वायल, उसको कंटामिनेट इसलिए नहीं करना है क्योंकि उसको हम 28 दिन के अंदर दोबारा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल Bipolio B13 is indicated for routine immunization against poliomyelitis in children from birth to 5 years of age to interrupt transmission of type 1 and type 3 polioviruses. Bipolio B13 can be administered safely and effectively at the same time as measles, mumps, rubella, inactivated polio vaccine, DTP, TT, TD, BCG, Haemophilus influenzae, and type B, yellow fever and hepatitis B vaccines and विटामिन ए सप्लीमेंट। तो इन सब के साथ हम बाईपोलियो वैक्सीन को दें तो भी कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो अगर आपने DTP का टीका लिया है, TT का लिया है या BCG का लिया है, बैसिलस कॉलमेट ग्लोरिन का, या हीमोफिलस का लिया है, तो भी आप इस वैक्सीन को ले सकते हैं। Adverse effect: millions of bipolio B13 doses have been dispensed and no major adverse effects have been observed, actually it's observed, okay, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। एक्सेप्ट फॉर वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिसिस 1 case per million doses administered। तो 1 मिलियन में एक बच्चे में शायद देखने को मिलेगा ये प्रॉब्लम, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियोमाइलिटिस डिजीज़, जिसमें पैरालिसिस हो जाता है, तो ये इसका एडवर्स इफेक्ट है। तो बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद चूँकि ये वैक्सीन बना है तो डेफिनेटली इसके एडवर्स इफेक्ट नहीं है, और चूँकि ये पीडियाट्रिक यूज़ के लिए होता है ओरल वैक्सीन, तो इसके एडवर्स इफेक्ट तो बिल्कुल नहीं है। और एकदम 1 मिलियन में एक केस मिलना, इसको हम एडवर्स इफेक्ट नहीं मानते, मतलब हम इसको उतना ध्यान नहीं देते, ठीक है। पर्सन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ रिसेंटली वैक्सीनेटेड चाइल्ड में वेरी रेयरली बी एट रिस्क ऑफ वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियोमाइलिटिस, ओके। तो इसमें देखिए यहाँ पे एक समझने की बात है कि अगर एक बच्चे को हम वैक्सीनेट करते हैं तो उसके अंदर एक्टिवेटेड वायरस है, वो भी कमज़ोर कंडीशन में, ठीक है, वो इन्फेक्शन फैलाने की हालत में नहीं है। लेकिन कुछ लोगों में, कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि वो इन्फेक्शन फैला देता है। जैसे आपने वैक्सीन लिया है, आपके बच्चे ने वैक्सीन लिया है, उसके साथ एक दूसरा बच्चा है, तो उसको वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियोमाइलिटिस हो गया। तो ये होता है कि 1 मिलियन में एक केस मिल रहा है, तो ये एडवर्स इफेक्ट हो गया, ठीक है, उसका पोलियो वैक्सीन का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉन्ट्राइंडिकेशंस। Bipolio B13 is contraindicated in those with primary immune deficiency disease or suppressed immune response from medication, leukemia, lymphoma or generalized malignancy. No adverse effects are produced by giving bipolio B13 to a sick child. ऐसा गाँव में assumption रहता है कि बच्चा बीमार है तो हम उसे पोलियो वैक्सीन नहीं देंगे, और इसके कारण वो बच्चे पोलियो के शिकार हो जाते हैं। मैंने खुद भी अपने आसपास ऐसे कई एग्जांपल्स देखे हैं। तो बच्चा चाहे सिम्टोमेटिक हो या एसिम्टोमेटिक हो, आपको उसे ओरल पोलियो वैक्सीन देना है, किसी भी कंडीशन में देना है। और कुछ खास कंडीशन है, जैसे बच्चे को डायरिया हुआ है, तो उस कंडीशन में जब उसे डोज दिया जाएगा तो वो जो डोज है वो काउंट नहीं किया जाएगा, मतलब डायरिया ठीक होने के बाद उसको फिर से ओरल पोलियो वैक्सीन का डोज दिया जाना चाहिए। सो यही कहा गया है, इन केस ऑफ डायरिया द डोज रिसीव्ड विल नॉट बी काउंटेड एज पार्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन शेड्यूल एंड इट शुड बी रिपीटेड आफ्टर रिकवरी। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टोरेज। तो वैक्सीन की स्टोरेज कंडीशन स्पेसिफिक होती है। आपने देखा होगा कि उसको बॉक्सेस में रखा जाता है,
जिसमें प्रॉपर उसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया जा सके, कोल्ड टेम्परेचर प्रोवाइड किया जा सके. सो द रिकमेंडेड स्टोरेज फॉर बाईपोलियो B13 इज़ एट -20 डिग्री सेल्सियस. चूँकि ये इसमें वायरसेस होते हैं, ठीक है, तो वो इनएक्टिवेट ना हो जाए या एक्टिवेट ना हो जाए, इसको ध्यान में रखने के लिए हमें टेम्परेचर मेंटेन करना होता है जिस कंटेनर्स में हम इनको रखते हैं. सो इट कैन बी स्टोर्ड एट +2 डिग्री सेल्सियस एंड +8 डिग्री सेल्सियस at any time during the shelf life until the expiry of VVM2. वैक्सीन वायल मॉनिटर्स आर पार्ट ऑफ द लेबल ऑन द बाईपोलियो वायल्स. तो ये वैक्सीन वायल मॉनिटर्स क्या हैं, ये लेबल पे लगे होते हैं जो लेबल के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं, खास स्पेसिफिक तरीके से बनाए जाते हैं. और WHO के रिकमेंडेशन के हिसाब से, उनकी जो गाइडलाइंस है उसी के हिसाब से ये वैक्सीन वायल मॉनिटर्स बनाए जाते हैं. बाईपोलियो B13 वैक्सीन इज़ प्रेजेंटेड एज 10 डोजेज पर वायल और 20 डोजेज पर वायल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेबलिंग. सो वैक्सीन्स की लेबलिंग शेड्यूल F1 के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही होती है. बैक्टीरियल वैक्सीन और वायरल वैक्सीन के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस है शेड्यूल F1 में जो कुछ इस तरीके से हैं. तो सबसे पहले एम्पाउल के लिए है, जो बॉटल है जिसमें वैक्सीन भरा हुआ है उसके लिए है कि उसमें प्रॉपर नेम होना चाहिए, यानी कि एक तो ट्रेड नेम होता है और कॉमन नेम दोनों होना चाहिए. और ट्रेड नेम एंड एक्चुअली जेनेरिक नेम. ओके, सो प्रॉपर नेम के साथ कंटेंट्स इन मिलीलीटर और डोजेस, कंटेंट भी लिखा होना चाहिए. और पोटेंसी, अगर कोई पोटेंसी है, एंड बैच नंबर, एक्सपायरी डेट. बैच नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द लेबल ऑन द आउटसाइड कंटेनर शैल इंडिकेट नेम ऑफ ड्रग और जेनेरिक नेम. आउटसाइड जो कंटेनर है, ये बॉक्स है, उसमें भी ये सारी चीज़ें लिखी होनी चाहिए. कंटेंट, डोजेज, मैन्युफैक्चरर और बैच नंबर, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, स्टोरेज कंडीशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. और कंपोजिशन भी लिखा होना चाहिए एंड कुछ कॉशंस लिखे होने चाहिए. सो चूँकि ये ओरल वैक्सीन है, सो इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर इन इंजेक्शन, सो नॉट फॉर इंजेक्शन, फॉर ओरल यूज ओनली, एंड स्टोर एट -20 डिग्री सेल्सियस और बिलो. एंड रीड इनक्लोज लिफलेट बिफोर यूज़, शेक वेल बिफोर यूज़. और ये फिजिशियंस के यूज़ के लिए ही होता है. सो ठीक है, तो इसको इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना ज़रूरी है यूज़ करने वाले को. और पैकिंग की बात करते हैं, तो पैकिंग आप देख सकते हैं इमेजेस में किस तरीके की पैकिंग होती है. और इन्हें इस तरह के कुछ बॉक्सेस में रखा जाता है, ब्लू कलर में आप जो देख रहे हैं. और पैकिंग के बारे में कहें तो पैकिंग जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी पैकिंग होती है. प्राइमरी पैकिंग में जो डोजेज है वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में रहते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था. सो विद इन अ टिपिकल वैक्सीन सप्लाई चेन, vaccines are packaged into individual cylindrical vials and that are bundled together in rectangular inner packs for support via even larger groupings such as cold boxes and vaccine carriers. ये जो है, ये है वैक्सीन कैरियर्स, कोल्ड बॉक्सेस. सो उसके बाद सेकेंडरी पैकिंग होती है जिसमें 50 वाइल्स भरे जाते हैं और ये बॉक्स का साइज भी है. सो टर्शियरी पैकिंग के लिए है, टर्शियरी पैकिंग जो बड़े बड़े कार्टून्स होते हैं. सो एक्सपांडेड पॉलीस्टीरीन बॉक्स कंटेनिंग 900 वायल्स फॉलोड बाय सिपर, एंड एक्सपांडेड पॉलीस्टीरीन बॉक्स कंटेनिंग 1200 वायल्स फॉलोड बाय सिपर. सो ये जो हैंडलिंग होती है वायल्स की और इस वैक्सीन की, वो WHO के रिकमेंडेशन के हिसाब से होती है. उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनके हिसाब से ही वैक्सीन्स की पैकिंग की जाती है. और बात करते हैं MMR वैक्सीन की. MMR वैक्सीन प्रायोरिक्स ब्रांड नेम से है. MMR वैक्सीन पाउडर के फॉर्म में आता है जिसके साथ स्टेरॉइड वाटर मिलता है, जिसको मिक्स करके इंजेक्शन के फॉर्म में यूज़ किया जाता है फिजिशियन के द्वारा. तो ये मीजल, वम्स और रूबेला वायरस के लिए यूज़ किया जाता है. एक तरह का कंबाइंड वैक्सीन है और इसके प्रोड्यूसर हैं ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, इंडिया की ही कंपनी है. और नेक्स्ट है एंथ्रेक्सपोर वैक्सीन. तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ बैक्टीरियल वैक्सीन एंड यूज्ड फॉर वेटरनरी पर्पसेस. तो देखिए, मैंने तीनों एग्जांपल डिस्कस की, तीनों जो मैंने पहले बताए थे, बैक्टीरियल वैक्सीन, वायरल वैक्सीन और टॉक्साइड, तीनों एग्जांपल में, तीनों के एग्जांपल्स मैंने दिए. ओरल वैक्सीन के भी एग्जांपल दिए. तो ये वेटरनरी पर्पस के लिए यूज़ किया जाने वाला है. इसमें एक कॉशन ज़रूर लिखा जाना चाहिए, नॉट फॉर ह्यूमन यूज़, ओनली फॉर एनिमल ट्रीटमेंट. ओके, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग. नेक्स्ट है टिटनस टॉक्साइड TF इंजेक्शन. टिटनस टॉक्साइड TF इंजेक्शन इज़ यूज्ड एज अ वैक्सीनेशन टू प्रिवेंट टिटनस, ऑल्सो नोन एज लॉकजॉ डिजीज़. आपने कई बार लगवाया होगा टिटनस का इंजेक्शन. और याद रखिए कि ये इंजेक्शन केवल हेल्थ केयर प्रोफेशनल के द्वारा ही लगाया जाना चाहिए आपके बॉडी में. आप खुद से इसे ना लगाएं.
And it is important that the child receive all the vaccination doses for the vaccine to be most effective, and it is important to get the vaccination booster injection every 10 years. आपने बच्चों का अगर वैक्सीनेशन शेड्यूल देखा होगा, टीकाकरण का शेड्यूल, तो उसमें टिटनेस का इंजेक्शन कई बार इंक्लूड हुआ होता है. DTP के फॉर्म में भी दिया जाता है, कंबाइंड वैक्सीन के फॉर्म में. एंड टिटनेस में क्या होता है, टिटनेस टॉक्साइड. तो ये टॉक्साइड वाले वैक्सीन का एग्जाम्पल है, ठीक है. और ये मैन्युफैक्चर किया गया है. ये वाला जो प्रोडक्ट है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा, फार्मास्यूटिकल कंपनी, ये भी बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है. So that is all for today guys. If you like this video, share this video with your friends and let me know कि इंडिया में इस साल वैक्सीनेशन, पोलियो वैक्सीनेशन कब से स्टार्ट हो रहा है. कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं और अपने आसपास भी अवेयरनेस फैलाएं वैक्सीनेशन से रिलेटेड. So thank you so much. Stay healthy, stay safe, have a good day.